इम्प्लांटेशन एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो development. Okay, so first of all, what is fertilization? We all know that during the fertilization, the male partner ejaculate the semen into the female reproductive tract and this sperm cell reach to the female gametes and it fertilize the egg. So बहुत ही brief में हम लेते हैं कि fertilization क्या है. So in fertilization, we all know that this is the fallopian tube, right? Okay. Now, when during the sexual intercourse, the male partner ejaculate the semen into the female reproductive tract, this is called the uterus. So, when the sperm cell enter into the female reproductive tract, okay, and the female ovary release the egg cells. Here it is the ovary release the egg cells. So, when these egg cells and the sperm cell both are simultaneously reach to the ampulla isthmus junction, because in fallopian tube this part is known as the ampulla, right? This portion is known as the ampulla. This part is called the isthmus. Okay, this part is called isthmus, this is called the ampulla, and this is called the ampulla isthmus junction. So, when this sperm enter into the female reproductive tract, this sperm, with the help of contraction of vagina, uterus and fallopian tube, the sperm travel towards the egg. Sperm travel towards the egg, and the ovary release the egg. Okay, and this egg is reached to the ampulla isthmus junction. At the same time, when the sperm cell reach to the egg, means when both egg as well as the sperm both are simultaneously reach at the ampulla isthmus junction, both are reach at simultaneously at the ampulla isthmus junction, then and then the fertilization will takes place. Okay, that's why each and every sexual intercourse is not converted into pregnancy. That's why each and every sexual intercourse is not converted into pregnancy. Why? Because it is necessary that both sperm cell as well as egg both are simultaneously reach to the ampulla isthmus junction. Once the sperm reach surrounding the egg, okay, so this is the structure of the eggs. Okay, this covering of egg is known as the zona pellucida. Covering of egg is known as the zona pellucida, and this egg is covered by the follicular cell. Egg is covered by follicular cell. There are more than 2 or 3 layers of the follicular cell, and this covering of egg with the follicular cell is known as the, बहुत interesting नाम है इसका बच्चों, corona. This is known as the corona radiata. Okay, अभी सब जगह कोरोना ही चल रहा है बच्चों. So it is known as the corona radiata, and when the sperm cell reach to the egg, means when this sperm is reach to the egg, we all know that the structure of the sperm cell, at the anterior part of the sperm cell it possesses the acrosome. It has the acrosome, and this acrosome has
high hyaluronidase enzyme, corona digestive enzyme, and zona lysine enzyme. The commonly these three enzymes are known as the sperm lysine enzyme. This acrosome has the sperm lysine enzyme. And what are the component of this sperm lysine enzyme? So the component of this sperm lysine enzyme is the zona lysine enzyme. This zona lysine is lysis or break down the zona pellucida. The second one is the corona digestive enzyme, and this corona digestive enzyme digests the corona radiata. And third one is the high hyaluronidase enzyme. So बच्चों ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना डाइजेस्टिव एंजाइम, व्हेन दिस एक्रोसोम गेट रप्चर्ड it release the enzymes. This enzyme first of all digest the corona radiata, means this follicular cell are known as corona radiata, उसको वो digest कर देंगे. Then after it will digest the zona pellucida. It will digest the zona pellucida. Once the zona pellucida get digested with the help of high hyaluronidase enzyme, this sperm is travel and enter into the egg. Okay, just when the sperm enter into the egg, only head and middle piece, only head and middle piece is enter into the egg. जैसे ही स्पर्म का हेड और मिडल पीस एग के अंदर एंटर हो जाएगा, तुरंत it will the zona pellucida form one more layer surrounding the zona pellucida, and it is known as the fertilizing barrier. It is known as fertilizing barrier. Clear? This fertilizing barrier is prevent the entry of the next sperm into the egg. Means बच्चों ये fertilizing barrier क्या करता है? दूसरे स्पर्म को एग के अंदर पेनेट्रेट होने नहीं देगा. क्लियर? मींस इट इज मेंटेन द मोनोस्पर्मी, एंड प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, क्लियर? मींस जब भी स्पर्म सेल जैसे ही एग के अंदर एंटर होगा, immediately it will form one fertilizing barrier, and this fertilizing barrier is prevent the entry of the next sperm into the egg, so it will maintain the monospermy. Means at that time egg में सिर्फ एक ही sperm cell enter हो सकता है. ओके, तो बच्चों दिमाग में क्वेश्चन आता है कि how the twins will be produced. So twins दो टाइप के होते हैं. Twins are two type. One is the monozygotic twins, and the second one is dizygotic twins. Now what is monozygotic twins? Means when the female release one egg and this egg is fertilized with the sperm cell, it will produce the single zygote cell. When this single zygote cell get divided into two cells, and both the cell simultaneously develop into the embryo. दोनों सेल एक साथ अगर एम्ब्रियो में डेवलप हो तभी उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. क्लियर? दैट्स व्हाई ये केस में जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो केस में अगर बेबी बॉय है तो दोनों बेबी बॉय होंगे, और अगर बेबी गर्ल है तो दोनों बेबी गर्ल, एंड दे बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे. ओके, जिसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस. तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में बच्चों क्या होता है कि फीमेल रिलीज टू एग एट अ टाइम. मींस फीमेल बॉडी में दो एग रिलीज होंगे और दोनों एग डिफरेंट स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होंगे,
and it will produce the two zygote. At that time कितने zygote form होंगे? Two zygote form, and both the zygote are independently developed into embryo. दोनों independently develop into embryo. That's why in such cases it may be बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, दोनों बेबी बॉय भी हो सकते हैं और दोनों बेबी गर्ल भी हो सकते हैं। If there is any chance, क्योंकि दोनों डिफरेंट फॉर्म से फर्टिलाइज हो रहे हैं, इसलिए कोई भी हो सकता है। क्लियर? नाउ अब सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तभी सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा। मींस हम सबको पता है कि फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ द स्पर्म और वन काइंड ऑफ द एग, दैट इज 22 प्लस एक्स। फीमेल में एक ही टाइप के गैमेट्स फॉर्म होते हैं, बट मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ द gametes, that is 22 plus x and 22 plus y. So which sperm fertilize the egg, it will decide the sex of the new baby. Okay, means जब भी अगर X sperm means X chromosome containing sperm cell fertilize the female gametes, then it will produce 44 plus XX and it become female. Clear? And when the Y chromosome containing sperm cell fertilize the female gametes and it will produce the 44XY and it become male. So बच्चों जो sex determination होता है that is based on the sperm of the male, not the female. Even after in India most of the families blame the female for the baby girl and the baby boy, but उसके लिए कौन responsible है? मेल के स्पर्म सेल रिस्पांसिबल है। कौन सा? मेल का स्पर्म सेल है जो फीमेल के गैमेट्स को फर्टिलाइज करता है, दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी। क्लियर? क्योंकि फीमेल में तो एक ही है कि गैमेट फॉर्म होते हैं, मींस फीमेल आर नेवर रिस्पांसिबल फॉर बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय, ऑलवेज मेल स्पर्म सेल इज रिस्पांसिबल फॉर द बेबी गर्ल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। नाउ एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। Now this zygote is divided with the help of the cleavage. अब cleavage form होगा, उसके बाद implantation start करते हैं। Now now the second point is the cleavage. Cleavage. Now what is cleavage? So this cleavage means it's a kind of mitosis, means उसमें भी सेल इक्वल टाइप के सेल में डिवाइड होता है, बट यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मा होगा वो डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोचो कि ये फैलोपियन ट्यूब है फीमेल का, okay? Once the zygote is formed, यहाँ पर zygote form हो गया, आसपास क्या है? जोना पेलुसिडा तो होगा ही, एग का जो मेम्ब्रेन था वो जोना पेलुसिडा यहाँ पर होगा, फीमेल प्रो न्यूक्लियस अंदर था तो ये था फीमेल न्यूक्लियस। जैसे ही मेल का न्यूक्लियस आया ये था मेल के स्पर्म सेल, तो ये इट इज द मेल प्रोन्यूक्लियस। अब वो दोनों क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे एंड इट विल प्रोड्यूस द zygote, will produce the zygote. Now it is called the zygote, and always zygote is diploid in nature. zygote कैसा होगा? Diploid. Now this zygote is divided by cleavage. क्लीवेज और माइटोसिस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्लीवेज में क्या होता है बच्चों कि जो सेल होता है वो डिवाइड होता रहता है, उसका साइटोप्लाज्मा जो होता है वो कभी डिवाइड नहीं होता, मींस न्यूक्लियर कंटेंट डीएनए डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्मा नहीं होता।
और माइटोसिस में क्या होता है, दोनों डीएनए भी डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्मा भी डुप्लीकेट। ऐसा क्यों कि सोचो अगर यहाँ साइटोप्लाज्मा डुप्लीकेट होगा तो क्या होगा, साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग। So at one time this fallopian tube may get ruptured due to increase or enlarge the size of the developing embryo. So उसका जो साइटोप्लाज्मा होगा वो इतना ही रहेगा, मींस आगे आप देखो तो क्या होगा कि जोना पेनिसिला तो है ही, वो तो उतना ही रहेगा, और जो एग होगा वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। फिर आगे जाएंगे, इट विल डिवाइड इनटू 4 cells, so it is like this 4 cells. फिर आगे जाएगा, it is divided into 8 cells. So now this is 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर आगे जाएगा, it is divided into 16 cells. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Clear? So this is called the 16 cell structure is called morula. This 16 cell structure is called the morula. अब यहाँ देखो बच्चों, साइज डिवाइड हुआ सेल, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, उसका साइटोप्लाज्मा सेम है, वो कभी डिवाइड नहीं होगा। साइटोप्लाज्मा इज सिमिलर, डीएनए डुप्लीकेट होता है, इसलिए this kind of the mitosis division is known as the cleavage division. Clear? अब ये मोरूला है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, now this morula is enter into the uterus. अब ये कहाँ एंटर होगा, यूट्रस में एंटर होगा। अब जैसे ही यूट्रस में एंटर होगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पर आसपास जोना पेलुसिडा है, आसपास क्या है, जोना पेलुसिडा. This 16 cell structure now converted into 32 cell structure. 16 cell structure now converted into 32 cell structure. ऐसे बहुत सारे सेल डिवाइड होके 32 cell structure में convert. This is known as the blastocyst. This structure is now called as a blastocyst. Now अब क्या होगा, now this zona pellucida is there. अब ये जो blastocyst है, this blastocyst cells are arranged. जो cells होंगे वो अरेंज होंगे, अरेंज मतलब वो है अभी क्या है, they are scattered. Okay, they are scattered means वो किसी भी तरह से पड़े हुए हैं, but now they all are arranged properly. और उसमें क्या होगा, the outer layer जो होगा, outer layer होगा वो प्रॉपरली अरेंज होके एक प्रॉपर सिमेट्रिकल लेयर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं trophocyte. It is known as the trophocytes. And this trophocytes के अंदर ये सेल तो है ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास. इनर सेल मास जो एक कमेंट आया है मैं देख लेता हूं फिर आपको आगे. So this is called the trophocytes and it is called the inner cell mass. Now this is, अब यह क्या होगा कि जो यूट्रस है, यूट्रस में से ना फ्लूइड एंटर इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ जो कैविटी फॉर्म होगा, दिस इज द कैविटी. दिस कैविटी इज known as the blastocyst. This cavity now called as a blastocyst. This cavity is called as a blastocyst. Okay, now अब क्या होगा बच्चों, this zona pellucida is recognize the site for the implantation. ये क्या होगा, implantation का साइट डिसाइड करेगा. सो यहाँ पर ये अब स्टिक हो जाएगा यहाँ पर. ओके, सो जोना पेलुसिडा का काम क्या है,
it will decide the site of the uterus. It will decide the site of the uterus where the embryo get attached. जैसे ही यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगा, रप्चर. दिस जोना पेलुसिडा गेट रप्चर्ड और यहाँ आ जाएगा आपका ट्रोफोब्लास्ट. क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट. क्लियर. तो यहाँ क्या हुआ बच्चों कि जो जोना पेलुसिडा था वो अब टूट गया क्योंकि उसने साइट डिसाइड कर लिया कि कहाँ पर बाइंड होना है. तो यहाँ पर वो बाइंड हो गया और ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर बाइंड हो गया. इनर सेल मास जो है वो यहाँ लोकेटेड है. दिस इज द इनर सेल मास. क्लियर बच्चों. तो ये हो गया इम्प्लांटेशन. तो यहाँ ये वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड पॉइंट इम्प्लांटेशन. ओके. 5 मिनट के बाद बच्चों हम देखते हैं हाउ द एम्ब्रियो गेट डेवलप. तो ये हो गया इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन को मैं दोबारा ब्रीफ करता हूँ कि जाइगोट बनता है, वो जाइगोट डिवाइड होता है और मोरुला में कन्वर्ट होता है. फिर मोरुला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है. वो ब्लास्टोसिस्ट के सेल रीअरेंज होके वो क्या बनाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, और पानी अंदर जाता है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिल. और फिर बच्चों ये जो जोना पेलुसिडा है वो साइट डिसाइड करता है क्या कि कहां उसको इम्प्लांट होना है यूट्रस वॉल में. जैसे ही साइट डिसाइड हो जाएगा तुरंत वो क्या करेगा, टूट जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा. फिर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा. तो ये हो गया इम्प्लांटेशन. अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट बच्चों 5 मिनट के बाद देखते हैं. थैंक यू. एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमने कहां तक देखा था, हमने देखा कि कैसे ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल के साथ अटैच हो जाता है. सो लास्ट जहां हमने छोड़ दिया था वो पॉइंट था कि दिस इज द wall of the uterus and this is the wall of the uterus and the zona pellucida will decide the site of the implantation and it will attach. The trophoblast is attached here. Trophoblast is attached at the wall of the uterus. Okay, so this is called the trophoblast, and the trophoblast which is present at the cavity of the uterus, it is known as the cytotrophoblast. It is known as the cytotrophoblast, and the trophoblast which is enter into the wall of the uterus, it is known as the syncytotrophoblast. Okay, syncytotrophoblast. So now the inner cell mass is present here. The inner cell mass is present here, and from this inner cell mass, the future baby will develop. This is called the inner cell. So धीरे धीरे बच्चों ये क्या होगा कि जो पूरा ये जो ब्लास्टोसिस्ट है that is now enter into the wall of the uterus. It is now enter into the wall of the uterus. अब मैं यूट्रस वॉल नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली आपको कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है हम उसकी बात करते हैं. सो नाउ द सेकंड स्टेप, उसके बाद जो स्टेप होगा, वी ऑल नो दैट द आउटर कवरिंग लेयर रेड कलर का जो है दैट इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट. इट इज नोन एज द trophoblast. Clear? So this is called the trophoblast. Now in the inner cell mass, okay, in the inner cell mass is now differentiated into two type of the cell. One is epiblast and second one is the hypoblast. ये inner cell mass है. So they are differentiated into two type of the cell. One is epiblast and second one is the hypoblast. So here it is the rectangular cell. This rectangular cell is known as the
epiblast, and the cell which is present at the lower side, it is flat, and they are known as the hypoblast. Now this epiblast, on in future this epiblast is developed into the ectoderm. It is developed into the ectoderm, and the hypoblast in future it is developed into the endoderm. Clear? So अगर आपको बोले कि which layer is developed first, ectoderm is first and then endoderm. Still mesoderm is not formed. आगे देखते हैं बच्चों mesoderm कैसे फॉर्म होता है. So now this is trophoblast, this is epiblast, this is hypoblast. Now बच्चों आगे देखेंगे तो आगे क्या होगा, अभी एक कैविटी फॉर्म होगा. Now simple, here it is the trophoblast तो है यहाँ पर, so this is the trophoblast. Okay, this structure is known as the trophoblast. Now this epiblast, एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं ये रहे एपीब्लास्ट के सेल्स. क्लियर? अब ये ट्रोफोब्लास्ट में से सेल फॉर्म होंगे. किसमें से? यहाँ याद रखना बच्चों. नाउ द न्यू सेल इज डेवलप्ड फ्रॉम दिस ट्रोफोब्लास्ट. यहाँ से डेवलप होंगे सेल. दे आर नोन एज एमनियोजेनिक सेल एंड इट फॉर्म वन कैविटी. इट इज नोन एज द एमनियोटिक कैविटी. इट इज नोन एज amniotic cavity. तो बच्चों ये क्या है? epiblast cell. This is called the epiblast cell. The new cell is formed from the trophoblast. It is known as the amniogenic cell, and this is from one cavity, and the cavity, the name of this cavity is known as the amniotic cavity. It is known as the amniotic cavity. तो बच्चों ये एमनियोटिक कैविटी में क्या होता है? तो इट possesses the amniotic fluid, and this amniotic fluid is responsible for the amniocentesis test. Now what is amniocentesis test? So amniocentesis test is the test to determine the chromosomal disorder. Means अगर कोई मदर और फादर इस कपल में ऑलरेडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उनके बच्चे में है कि नहीं होगा जानना है. तो एट अर्ली एम्ब्रियो ये कब फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म एट द 4th डे. दैट अर्ली एम्ब्रियो, अगर हम यहाँ से एम्ब्रियोटिक फ्लूइड ले ले और वो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को अगर हम टेस्ट करें तो हमको क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट है कि नहीं वो पता चल जाता है. इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, बेबी XX और XY, बट द amniocentesis is banned in the India. Okay, so now this is the cavities form, and similarly this hypoblast cell is also formed one cavity. Here it is the hypoblast cell. It also form this cavity. This is the hypoblast cell. This hypoblast cell will form the cavity, and name of this cavity is known as the primary yolk sac. It is known as the primary yolk sac, and this primary yolk sac is the site of the RBC formation. Means first time the RBC get formed, RBC formed in the primary yolk sac. Clear? Now उसके बाद आगे चलते बच्चों. आगे क्या होगा? अब होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्म होगा. वो कहाँ होगा? सो अब ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप. फिर यहाँ 4th स्टेप में हम जाते हैं. तो 4th स्टेप में क्या होगा? नाउ वी हैव अ ट्रोफोब्लास्ट. हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है. आउटर कवरिंग इज ट्रोफोब्लास्ट. सो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, राइट? This is the trophoblast layer.
And in this trophoblast layer, here it possesses the epiblast cell. This is the epiblast, and this is the amniogenic cell, and it forms the cavity, amniotic cavity. Now, this space between this trophoblast एंड हाइपोब्लास्ट सेल के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, वही स्पेस में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्मेशन स्टार्ट मींस यहाँ पर ये पूरा जो कैविटी है, कैविटी तो रहेगा, यहाँ पर सेल भी होंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी यॉर्क सेल, ये है एम्नियोटिक कैविटी। नाउ बच्चों यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्मेशन। इट विल फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्मेशन। दिस इज द एक्स्ट्रा embryonic mesoderm means it is not a true mesoderm. It is not a true mesoderm means it is not formed in the embryonic disc. This is called embryonic disc. ये दोनों को साथ में हम बोल सकते हैं embryonic disc हम बोल सकते हैं। Okay? Now बच्चों क्या होगा? This extra embryonic mesoderm get divided. देखो अभी फिफ्थ स्टेप में हम जाएंगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म गेट डिवाइडेड। यहां पर ट्रोफोब्लास्ट है, क्लियर? फिर यहां पर क्या होगा? ये पूरा कैविटी भी है, मैं लेबल अभी नहीं कर रहा क्योंकि आपको आगे मैंने बता दिया है। नाउ दिस प्राइमरी यॉर्क सेल गेट कंस्ट्रिक्टेड, नैरो। दिस इज द प्राइमरी यॉर्क सेल एंड हाइपोब्लास्ट सेल एंड दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नाउ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। थोड़ा बहुत यहाँ रह जाएगा ट्रोफोब्लास्ट के साथ, सब जगह होगा ऊपर नीचे, और थोड़ा बहुत हाइपोब्लास्ट के पास। जो ट्रोफोब्लास्ट के पास रहता है ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है? इट इज नोन एज दी सोमेटोप्लेयूरिक ट्रोफोब्लास्ट, सॉरी सोमेटोप्लेयूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या है ये? सोमेटोप्लेयूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। और बच्चों ये जो ऊपर की तरफ है वो है स्प्लिंकोप्लेयूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये क्या है? स्प्लिंकोप्लेयूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये छोटा हो गया, प्राइमरी यॉर्क सेल था वो छोटा हो गया, so now this primary yolk sac is known as the secondary yolk sac. It is known as the secondary yolk sac. This is the amniotic cavity. Still, this is the epiblast cell. These are known as the hypoblast cell. Clear बच्चों? Now this will outer trophoblast and inner somatopleuric extra एम्ब्रियोनिक। दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर? This is outer trophoblast और अंदर की तरफ क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सोमेटोप्लेयूरिक एक्स्ट्रा। ये दोनों
कंबाइन होके एक लेयर बनाएंगे, दोनों कंबाइन होके एक लेयर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं कॉरियन। क्या बोलते हैं? कॉरियन लेयर। ये कॉरियन लेयर आगे चल के प्लेसेंटा में, क्लियर। और दूसरा एक चीज, ये जो दोनों है, इनर साइड इट इज हाइपोब्लास्ट सेल, ग्रीन कलर का हाइपोब्लास्ट सेल था, इनर साइड इट इज हाइपोब्लास्ट, आउटर साइड इट इज स्प्लिंकोप्लेवरी। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे कवरिंग ऑफ यॉर्क सैक, मींस यॉर्क सैक कवरिंग। ओके। और बच्चों ये जो दोनों कवरिंग है मींस कौन कौन से? ये क्या है? मैंने देखो ये जो ब्लैक कलर के डॉट मैंने बनाए वो यहां तक मैंने बनाए हैं, तो ये है सोमेटोप्लेवरी, यही कौन सा? ब्लैक कलर। ब्लू कलर का क्या है? एम्नियोजेनिक लेयर, दिख रहा है आपको एम्नियोजेनिक लेयर। और वो एम्नियोजेनिक लेयर कहां से बने थे? तो वो बने थे ट्रोफोब्लास्ट में से ही फॉर्म हुए थे। कहां से? बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट था उसमें से ही वो फॉर्म हुए थे। तो यहां पर क्या हुआ? आउटसाइड सोमेटोप्लेवरिक एक्सटैंडिंग मेसोडर्म, इनसाइड ट्रोफोब्लास्ट। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एमनियन। क्या बनाएंगे? एमनियन। मींस आपको बच्चों यहाँ क्या याद रखना है कि तीनों लेयर, कोरियन लेयर, एलेंटॉइड लेयर भी इसको बोल सकते हैं या फिर यॉर्कसैक लेयर भी बोल सकते हैं, और एमनियन लेयर। कैसे बनते हैं तीनों लेयर? यहाँ आउटसाइड क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, इनसाइड क्या है? सोमेटोप्लेवरिक एक्सटैंडिंग मेसोडर्म। यहाँ इनसाइड क्या है? हाइपोब्लास्ट, और आउटसाइड क्या है? स्प्लिंकोप्लेवरिक एक्सटैंडिंग मेसोडर्म। यहाँ आउटसाइड क्या था? वही सोमेटोप्लेवरिक एक्सटैंडिंग मेसोडर्म ऊपर जा रहा है, और अंदर जो ब्लू सेल है वो कहां से डेवलप हो रहे थे? दैट ब्लू लाइनिंग इज डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट, और आउटसाइड इट इज सोमेटोप्लेवरिक एक्सटैंडिंग मेसोडर्म, और वो बनाएंगे एमनियन लेयर। तीनों लेयर पता चल गया बच्चों आपको। अब क्या होगा? तो नाउ ये जो है एम्ब्रियोनिक डिस्क में आपको बताता हूं, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क में प्रिमिटिव स्ट्रिप डेवलपमेंट होगा। मींस अभी हम 6 स्टेप में जा रहे हैं। अब एक्चुअल मेसोडर्म बनेगा। ये हमारे पास क्या था? ये पर ये है एपीब्लास्ट, ये है एपीब्लास्ट ऊपर का ब्लू कलर का। नीचे क्या था हमारे पास? हाइपोब्लास्ट। बच्चों ये दोनों के बीच में प्रिमिटिव स्ट्रिप डेवलपमेंट होगा, इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियोनिक डिस्क बोल सकते हैं। कि एक्चुअल अब वहां अंदर की तरफ क्या होगा? मेसोडर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, प्रिमिटिव स्ट्रिप बनेगा। प्रिमिटिव स्ट्रिप का मतलब क्या है कि यहाँ ये थोड़ा उठ जाएगा ऐसे, और यहाँ जो सेल है वो एपिब्लास्ट सेल तो रहेंगे, और नीचे की तरफ ये हो जाएगा हाइपोब्लास्ट सेल। ये हो गया हाइपोब्लास्ट सेल। सो नाउ दिस एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, दिस इज द एपिब्लास्ट एंड दिस इज द हाइपोब्लास्ट के बीच में एक ये बन गया प्रिमिटिव स्ट्रिप, और उसको प्रिमोर्डियल स्ट्रिप भी बोलते हैं। नाउ क्या होगा बच्चों? ऊपर जो एपिब्लास्ट है ऊपर से प्रेशर आएगा, और ऊपर से प्रेशर आएगा और नए सेल उसमें ऐड होते जाएंगे। मींस यहाँ पर ऊपर से प्रेशर आएगा और नए नए सेल इसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे नए सेल ऐड होंगे तो यहाँ पर ऐसे सेल अरेंज होते जाएंगे। और ये जो सेल्स अरेंज होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। और ये एक्चुअल ट्रू मेसोडर्म है, जिससे एपिब्लास्ट, मेसोडर्म एंड हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट में से क्या फॉर्म होगा? एक्टोडर्म फॉर्म होगा, हाइपोब्लास्ट से क्या होगा? एंडोडर्म फॉर्म होगा, और मेसोडर्म।
क्लियर बच्चों, इतना पता चल गया। अब आगे बच्चों क्या होगा, आगे अब होगा कि यहां से कोरियन विलाय फॉर्म होगा। क्या होगा, कोरियन विलाय, मींस ये जो दोनों लेयर मिलकर कोरियन बना रहे हैं, तो यहां से अब कोरियन विलाय फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ऐसे विलाय लाइक स्ट्रक्चर। और ये कोरियन विलाय एक्चुअली कहां जाएगा, तो दे आर इम्प्रिंटेड और दे आर स्टिक टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द मदर। अब मैं यहां बना रहा हूं कि एंड में क्या होगा, और एंड में तो ये पूरा क्या हो गया, प्लेसेंटा। दिस इज द प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है उसमें यहां पर कोरियन, यहां पर कोरियन विलाय हो गया। दिस इज द कोरियन villi. This Korean villi is getting the nutritional from the mother's blood, और उसमें से क्या निकलेगा, umbilical cord। इसमें से क्या फॉर्म होगा, umbilical cord। So this is known as the umbilical cord। This umbilical cord is provide the nutritional to the mother, sorry from mother to fetus। ये पूरा जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करता है कि एक तो बच्चे को न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करता है, और बच्चों में से जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसको एक्सक्रीट भी करता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा दिस इज द fetus। ठीक, समझ लेना है बच्चों, ये बेबी ही है, दिख रहा है आपको बेबी, इसके आईज हैं, इसकी आईज है, ओके क्लियर। और ये क्या है, दिस इज द प्लेसेंटा, वो हमने लिखा, ठीक क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में कि ये ट्रोफोब्लास्ट था वो इम्प्रेग्नेटेड हो गया, बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट था उसको हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट बोला, अंदर की तरफ गया वो सिंस्टियोट्रोफोब्लास्ट था, फिर ये इनर सेल मास था। फिर हमको ट्रोफोब्लास्ट का भी कोई काम नहीं, इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हुए, वो कॉलमनार सेल और दी फ्लैट सेल, जो कॉलमनार सेल है वो एपिब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो गए, नीचे जो सेल थे वो हाइपोब्लास्ट थे, एपिब्लास्ट एक्टोडर्म बनाता है, हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बनाता है। सबसे पहले जो लेयर बनेगा वो एक्टोडर्म है, फिर बाद में एंडोडर्म, सबसे बाहर है ट्रोफोब्लास्ट। फिर कैविटी फॉर्म होता है, उसको एम्ब्रियोनिक कैविटी बोलते हैं, नीचे जो कैविटी फॉर्म होगा उसको प्राइमरी ऑक्साइड बोलते हैं, और उसमें से फर्स्ट आरबीसी फॉर्म होते हैं। फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस बनेगा, फिर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस डिवाइड होंगे सोमेटोप्लेवरिक और स्प्लिंकोप्लेवरिक में। फिर वो तीन डिफरेंट लेयर बनाएंगे, दैट इज कोरियन लेयर, ऑक्साइड लेयर और द एडेनोइड लेयर एंड द एम्ब्रियोन लेयर। फिर एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में प्रिमिटिव स्ट्रिंग होगा, उसके अंदर क्या होगा, मेसोडर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ये बन गया एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड फिर जो कोरियन था, कोरियन विल फॉर्म द कोरियन विलाई, और उसमें से प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होगा। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा एक्चुअली, प्लेसेंटा जो होता है वो उसको टेम्परली एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं,
क्या बोलते हैं? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. Why? Because it is only and only found during the pregnancy. And why it is called temporary endocrine gland? Because they secrete the 4 hormones. Which one? One is human chorionic hormone, HCG. Human gonadotrophic hormone. Second one is human placenta lactogenic hormone. Human placenta lactogenic hormone. Third one is estrogen, वो तो हम सबको पता है. And fourth one is progesterone. ये तो pregnancy ना हो फिर भी ये ओवरी में से secrete होते हैं. But this 2 hormone is only and only found during the pregnancy. During the pregnancy, one more hormone is released from the ovary, that is known as the relaxin. वो क्या है? Relaxin. अब बच्चों ये ह्यूमन gonadotrophic hormone का काम क्या है पता है आपको? कि ये only during the pregnancy form होता है. और ये हार्मोन अगर बढ़ जाए या फिर ये हार्मोन का मेटाबोलाइज होता है तो वो यूरिन में से एक्सक्रीट होता है. कहां से? यूरिन में से. इसीलिए ये हार्मोन का यूज कहां पर होता है? सो प्रेगनेंसी डिटेक्शन में. प्रेगनेंसी डिटेक्शन में आपको पता है वो स्ट्रिप आता है प्रेगा यूज करके. तो वो जो स्ट्रिप होता है उसमें आप यूरिन का ड्रॉप डालो तो क्या होता है? बैंड आते हैं, 2 बैंड. ओके, क्यों ऐसा होता है? अगर फीमेल बॉडी में प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ है तो ये हार्मोन होगा. ये हार्मोन होगा तो यूरिन में से एक्सक्रीट होगा, और यूरिन में से एक्सक्रीट होगा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा. अगर ये हार्मोन एक्सक्रीट नहीं हुआ है, ओके, मींस ये हार्मोन नहीं होगा, प्लेसेंटा नहीं होगा तो हार्मोन नहीं होगा, तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा तो टेस्ट नेगेटिव आएगा. तो इसको इस हार्मोन की वजह से हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, वो प्रेगनेंसी वाली स्ट्रिप. क्लियर बच्चों? तो ये सब हो गया क्या कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ओके, भाई कमेंट आया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड. सो प्लेसेंटा इट्स अ फिजियोलॉजिकल बैरियर बिटवीन द मदर एंड द fetus. Between the mother and the fetus. An umbilical cord, actually the tissues are almost similar, but this umbilical cord is connected with the fetus. Okay, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में ओनली मदर ब्लड सर्कुलेट होता है, उसमें फीटस ब्लड नहीं होता है. यहां तक मदर ब्लड आता है. फिर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड और उसमें फीटस ब्लड होता है. ओके, और यहां से मदर ब्लड कभी अंदर नहीं आ सकता. यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? तो न्यूट्रिशन वेस्ट जो होगा वो यहां से अंदर आएगा और बाहर निकलेगा. अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम एज अ स्टेम सेल भी यूज करते हैं, कि आपको सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेम सेल के टेक्निक आ रहे हैं. तो स्टेम सेल कहां से आइसोलेट करते हैं? तो स्टेम सेल अम्बिलिकल कॉर्ड से आइसोलेट. अगर आपके पेरेंट्स को पूछेंगे तो आपको पता होगा कि बच्चा अगर जब जन्म लेता है तो उसके यहाँ अम्बिलिकल एरिया में थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड रह जाता है. फिर आफ्टर 6 और 7 डेज के बाद वो अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई होकर निकल जाता है. कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? ये अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, और जब भी बच्चा बहुत रोता है तो उसको घीस के पिला देते हैं. ओके, तो उसको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है. बट ऐसा कितने दिन चलेगा? मैक्सिमम 15 और 20 डेज और 1 मंथ, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बॉडी से निकल गया है और वो धीरे धीरे ड्राई होकर वो सेल मर जाएंगे. पर अभी टेक्निक आ गई है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में से स्टेम सेल को प्रिजर्व करके आप उसको रख सकते हो, और जब भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हम वो प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व कर सके या फिर उसको ट्रीट कर सके. बट दिस इज ऑल आर, अभी तक वो सब क्या है? सिर्फ हाइपोथेसिस है. आगे उसका रिसर्च होगा तब हमको पता चलेगा कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड में से जो स्टेम सेल मिलते हैं वो कितने यूज हो सकते हैं. बट अभी स्टेम सेल प्रिजर्व करने लगे हैं सब लोगों के बच्चों. ओके, तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का डिफरेंस. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट.